and it's one of the most powerful ones. And the the panel is about women supporting women, right? And we are very happy to have Teamworks Arts co-hosting this session as well. So, in a lot of places, we keep talking about women, and we've had at least 3 discussions today about women in AI and things like that. But I think this is the most powerful, which talks about how women can support the women, where incredible leaders are breaking barriers to create better livelihoods, equity, and social justice for others. This is very interesting, and I would like to really hear from them as well. So, we have an amazing panel today. We have with us Pooja Pandey, co-CEO of Chambal Media, home to Khabar Lahariya. Pooja is a writer, TED speaker, and has nearly 20 years of experience in writing and editing. We have Surabhi Yadav, founder and CEO of Saje Sapne, and she talks about her Sapne Walis all the time. After graduating from UC Berkeley, she is settled in rural India and kickstarted grassroots leadership initiative through Saje Sapne and Project Basanti. Sampath Paldevi, the founder of Gulabi Gang, she started a journey as a social crusader in 2006, leading a women's movement to fight social injustice, now with tens and thousands of members. And moderating this amazing panel will be Nishta Gautam, the Quint's senior editor, Opinions, with over 15 years of experience writing on gender politics and more. So before we start, just the housekeeping. There will be questions, so there will be a menti.com that will be there. So the questions will be, you can put in your questions there, and the moderator will take the questions towards the end of the session as it is coming. And as a normal housekeeping, please, your phones on silent, please. And enjoy the session. Over to you, Nishta. Good evening, ladies and gentlemen. First, I want to have a show of hands. How many of us are comfortable in Hindi? Because this session is going to be bilingual, so I do not want to exclude anybody. And I saw that maybe 3-4 people did not raise their hands, and I will try to translate whatever Sampath is trying to say here. So the session here, we were introduced very kindly by the Nudge team. And I just want to start the discussion with saying that women need not help and support each other. They actually need to do exactly what the session is. Where is the session? Women breaking barriers. We need women. We need other women. We cannot progress without it. We cannot take even a single step without somebody else also fighting our fight. And I think that's what makes this panel so distinguished and exciting and all sorts of heroic, is that these women have actually broken barriers for other women. And without further ado, I just want to start with Pooja. Pooja Khabar Lahariya, when you started this, it was all about breaking barriers in media, because you were working grassroots, and you were also fighting a bias, because grassroots was considered unimportant, grassroots was considered uneducated, grassroots was considered vernacular and unfashionable. And the interesting thing about this panel is that we are all from one geographical location, which is Uttar Pradesh. Pooja now calls herself Uttarakhandi, but hain to wo bhi Uttar Pradesh wale. we are very good at co-opting. So fighting that bias, all of us have हमारा एक जो पैर है वो rural
कॉन्टेक्स्ट में है और एक पैर हमारा बहुत अर्बन फैशनेबल कॉन्टेक्स्ट में. ये हम सब के, हम चारों की ज़िंदगी की कहानी ये है. So how difficult was it to break so many barriers in one stroke? It's not just about gender barriers, but it is about the barriers of perception there. All right, thanks Nikshita for that question, and I am very excited to just be on this panel. और हम एक दूसरे को ये कह रहे थे कि हम सुनने के लिए आए हैं, तो यही बात हो रही थी कि बोलेगा कौन. मैं भी ज़्यादा सुनना चाहती हूँ सुरभि, निष्ठा और ऑफ कोर्स संपत जी से. फॉर द क्वेश्चन, मे बी मैं हिंदी में बोलती हूँ एंड आई कैन हेल्प यू निष्ठा विद द ट्रांसलेशन. With Khabar Lahari, I think you're absolutely right. What you first said about women, empowering women, although it's a cool hashtag, I use it too. But, you know, that kind of assumes that empowerment is the onus of, you know, certain women or certain people. And at Khabar Lahari, I think it's, I mean, my learning over the past years now has just been the opposite actually, because it's really about, going back to what we were saying, hum sunne aaye hain, it's really about listening and facilitating and just वो उस तरह का माहौल बनाना और कुछ करने की इच्छा. खबर लहरिया के ओरिजिन्स क्योंकि आप कह रहे थे, तो ये 2002 की बात है और पाठा क्षेत्र जिससे संपत जी बहुत परिचित हैं, वहाँ से पैदा हुआ है. एंड एब्सोल्युटली वो मीडिया को चुनौती देने वाले नोशन से पैदा हुआ. बट एक्चुअली जो इम्पल्स था वो ये था कि जो पत्रकार हैं, जिनकी समाज में एक तरह की स्टेटस होता है, वो एक तरह के होते हैं, एक ढांचे में होते हैं पत्रकार. ये हमने देखा. वो पुरुष तो होते ही हैं, पर जाति भी उच्च जाति के होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं, एक तरह का बैकग्राउंड होता है, एक तरह का एक्सेस मैं कहूँगी, बिकॉज दैट्स व्हाट इट काइंड ऑफ बॉइल्स डाउन टू. जब हम जेंडर, कास्ट, क्लास, बैकग्राउंड, इनकम, इन सब चीज़ों की बातें आजकल इंटरसेक्शनल वेज में करते हैं, तो ये कि जब इस तरह के पत्रकार होंगे तो एक तरह की पत्रकारिता भी होगी, और क्योंकि एक तरह का नज़रिया ही आएगा. तो ये था जो एक्चुअली इम्पल्स था कि हमारी खबरें, हमारे मुद्दे, हमारी कहानियाँ तभी आएंगे जब हम जैसे कोई होंगे जो ये कर रहे होंगे. तो ये एक्सेस ऑफ पावर को शिफ्ट करना, आई डोंट थिंक ऐसे सोचा था, बट दैट हैज़ व्हाट हैपेंड. क्योंकि जब हमने शुरुआत की तब तो कोई भी महिलाएं नहीं थी. संपत जी बता सकते हैं और अब ये भी बता सकते हैं कि अब कितनी हैं. और खबर लहरिया इससे बहुत एक्साइटेड होता है, बहुत श्रेय भी लेते हैं, राइटफुली सो, कि उनको देख के अब कितनी महिलाएं हैं. बट एट दैट पॉइंट वो वाला पब्लिक स्पेस ऑक्यूपाई करना जहाँ पर आप सवाल पूछ रहे हैं ऑफ दोज इन अथॉरिटी जो जनरली जेंडर, कास्ट, प्रिविलेज से ही आ रहे हैं, वॉज द रेवोल्यूशनरी थिंग. जो बैरियर ब्रेकिंग वाली चीज़ थी कि उस प्लेसेस में वो लोग हैं. एंड आई थिंक दूसरा पॉइंट ये है कि ये करते रहना, वो जो लगे रहना पड़ता है ना, दैट परसिवियरेंस, आई थिंक वो बहुत इंपॉर्टेंट है. और एम्पावरमेंट की स्टोरी में आई थिंक ये वाले इश्यूज़ की बात नहीं होती है, वेयर इट्स अबाउट डूइंग दिस फॉर ईयर्स एंड डेकेड्स एंड डेकेड्स. अब 22 साल हो गए हैं खबर लहरिया को, और लगातार ये करते रहना. और अब जो नई पीढ़ी के पत्रकार आ रहे हैं, जो महिलाएं आ रही हैं इस क्षेत्र में, वो मतलब वी हैव टू से, मतलब कई बार हमें लगता है कि कुछ भी तो नहीं बदला. और ख़ासकर जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं जो आजकल चर्चा में, तब लगता है कुछ नहीं बदला. पर जब हम 22 साल का आर्क देखते हैं तो बहुत कुछ बदला है. अभी जो महिलाएं हैं जो हमारे डिजिटल स्टोरी टेलिंग कोर्सेज में इंटरेस्टेड हैं, सुरभि और इनके बारे में बता सकते हैं, अपने सपने वालियों के बारे में, वो बहुत अलग स्पेशी है, बहुत अलग ब्रीड है. उसी क्षेत्र से आते हुए जो यंग लोग हैं, यहाँ पे संपत जी की बहू भी हैं, शायद वो भी इसके बारे में जानती होंगी कि उनकी डिजिटल क्षमता भी है, वो एक दुनिया भी देख रहे हैं, एक एक्सपोजर भी हो रहा है. तो और वो जब खबर लहरिया के पत्रकारों को देख रहे हैं, उनको रोल मॉडल्स मान रहे हैं, तो क्या बदल रहा है. तो आई थिंक एक ये कंसिस्टेंटली वाला काम बहुत ज़रूरी है. Right. We were just talking in the green room, as it were, how it is more difficult to retain the passion, the fire, and it is when it comes to women, it becomes doubly challenging. And the problem with retention is on both the sides, because
your ability as an employee, an employer, both get challenged all the time. And should we, so that brings me to you with my question. What are these checkpoints that you have in mind to make sure that things keep getting done for a long time, as Pooja said? Because otherwise it's of no use. A treatment, a treatment plan has to run its course. You cannot stop in between. So if I understand the question correctly, आप पूछ रहे हो कि कैसे काम लगातार चालू रहे, whatever work we are doing, and it's very easy to lose heat, especially given the system if it is rigged against you. Okay, so let's see. Easy question. I mean, Pooja was mentioning about empowerment. और साझे में हम ये बोलते हैं कि आज़ादी दी नहीं जाती, आज़ादी तो ली जाती है, राइट? अगर मैं बोल रही हूँ, मैं आपको एम्पावर कर रही हूँ, तो आपका एम्पावरमेंट ऑलरेडी आई अंडर कट, है ना? आप आज़ादी लेते हो, आप आज़ाद हो, इसलिए आप आज़ादी ले रहे हो, राइट? ब्रिटिशर्स ने हमको आज़ादी दी नहीं थी, हमने आज़ादी ली थी, एंड दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ क्लेमिंग योर एम्पावरमेंट. यू डोंट गिव एम्पावरमेंट, राइट? तो सवाल ये है कि ये आज़ादी लेने की जो प्रोसेस है, आज़ादी जब कोई ले रहा है अपनी, तो किसको दिक्कत हो रही है? कौन है जिनको दिक्कत हो रही है, राइट? तो उनसे डील करते रहना लंबे समय तक, ये सवाल है. I mean, now I'm thinking individuals and institutions, ना? So there is people, there is पैसा, and then there are policy. ठीक है? People level पे अगर आपको इंस्टीट्यूशन बनाना है, अगर पीपल को इंस्टीट्यूशन बनाना है, मतलब हम लोग बोलते हैं ना कि क्लाइमेट चेंज सॉल्व करना है तो बाय दिस पेन, बट you're making individuals do institutional job. That's not gonna cut it. This is gonna make you feel nice, but this is not gonna solve climate change, right? तो अगर पीपल को इंस्टीट्यूशन जैसा काम कराना है, तो संपत जी जैसा काम करना होगा कि लोगों को बहुत इकट्ठा करो एक शेयर्ड पर्पस के लिए. जिंदगी की इतनी जद्दोजहद है कि हम एक पर्पस के लिए साथ में तो इकट्ठे नहीं हो पाते हैं ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. सो फॉर दैट यू नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग पब्लिक नैरेटिव कि अगर हमको, जैसे अभी हम साझे में एक नारा चला रहे हैं कि काबिल कमाओ कामयाब गांव की औरतें, और वो लहर दौड़ानी है, और अगर वो लहर मुझे पीपल लेवल पे दौड़ानी है, तो उसके लिए मुझे परिवारों को भी इकट्ठा करना पड़ेगा, सपने वालियों को भी इकट्ठा करना पड़ेगा, और जब तक इकट्ठा नहीं करेंगे वो पीपल इंस्टीट्यूशन नहीं बनेगा. फिर वो पीपल क्या लड़ती रहेगी सिस्टम से कि अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो वर्क प्लेस से आउट है, उसको अंग्रेजी नहीं आती है तो वर्क प्लेस में एंट्री नहीं है, उसके पास अगर दलित समाज की है, बहुजन समाज की है, एक तरीके का खाना खाएगी, एक तरीके की बोली बोलेगी, ऑलरेडी द टोन इन द रूम चेंजेस. तो अगर पीपल को इंस्टीट्यूशन बनाना है तो बहुत इकट्ठा होना पड़ेगा, बहुत पब्लिक नैरेटिव का काम करना पड़ेगा. घर बैठ के नहीं कर सकते, एक्चुअली ज़मीन पे उतर कर अच्छे से सड़कों पे काम करना पड़ेगा. एंड दैट्स व्हाट पॉलिटिशियंस डू द बेस्ट, no matter which political party you're from, but elections run across the 5 years, not just the final years. वो 5 साल वो on ground mobilization चल रहा है. So that's how you make people as institution, and that's how hopefully you'll sustain it. Policy level पे काम करना है, तो just think about this gathering, right? A wonderful gathering, I love this. The more people enter in the political level which are women or actually focused on gender issue, all of a sudden nature of topic will change. The current hot topic is AI. Fantastic. We need it. But we are going so techno-capitalistic, और वो ज़रूरी है एक हद तक, पर अगर औरतें चला रही होती सरकार, तो motherhood would have come in the session. Motherhood और social entrepreneurship कैसे करें? जब आप pregnant हो तो how do you do social entrepreneurship? It will come in. जब तुम पीरियड के क्रैम्प्स चल रहे हैं तुम्हारे, तो कैसे do you do field visits? है ना? अभी हमको एक कंपनी एक पीरियड लीड दे देती है, that becomes a sensational news कि होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए. अरे half of your workforce is women. How are you even discussing that? You know?
तो पॉलिसी लेवल पे इफ यू वांट टू वर्क, यू रियली नीड टू not only focus on women but have to focus on how men or patriarchy in general gets threatened or loses a bit of power जब वो आज़ादी लेने की बात होती है. Last is पैसा and I'll stop there very quickly. In general, women have less chances to fail than men. है ना. तो औरतों को कमाना पड़ता है. मैं फर्स्ट रैंक लेकर आऊँगी तो पापा 12वीं पढ़ने देंगे, अच्छा कॉलेज लेके आऊँगी तो पोस्ट ग्रेड करने देंगे, उससे भी अच्छा कॉलेज लेके आऊँगी या सही तरीके से शादी करूँगी तो देन ऑल ऑफ सडन आई एम द रोल मॉडल. बट व्हाट इफ आई डिडंट गेट द फर्स्ट रैंक इन 10th क्लास? वुड आई गेट 12th क्लास? तो you actually should see the role models who sit here. There was a young student, one of the panelists, and she said कि मेरे को अच्छा ये हुआ तो मेरे को ये मिला. तो आप पूरे टाइम आज़ादी कमा रहे हो, which is, and then when you listen to girls talk about it, like a lot of my students, मम्मी पापा ने आने दिया है पढ़ने के लिए, I can't do the wrong thing. अरे आने क्या दिया है पढ़ने के लिए? तेरा काम था पढ़ना. Like this was yours on the first place, but आज़ादी दी उसको, तो now she is paying for that आज़ादी. तो women don't have equal number of chances to fail as men do. एंड यहीं पे हमारी वो तकरार हो जाती है कि यार हम भी तो सेम काम कर रहे हैं, हम भी तो सेम काम कर रहे हैं, राइट? तो क्या बराबरी तो है? बराबरी नहीं है. एक को ज़्यादा मौके मिल रहे हैं फेल होने के लिए, एक को कम मिल रहे हैं. तो जस्ट एट द पैसा लेवल, आई टॉक एट द इनोवेशन लेवल, फंडर्स नीड टू फंड द फेलियर ऑफ इनोवेशंस. तुमको अगर औरतों के लिए कुछ तोड़फोड़ मचानी है, मर्दों के साथ काम करना है, वेयर एक्चुअल रियल स्टफ कैन बी डिस्कस्ड, वेयर एजेंसी कैन बी डिस्कस्ड, व्हेन दिस नोशन ऑफ आज़ादी कैन बी अंडरस्टूड एंड डिस्कस्ड, you need money for exploring that first. We don't have that money because AI can't understand agency. But if you're stuck on AI as an answer to a lot of things, then you're not going to reach to agency. Then you're not going to understand वो लड़की के लिए आज़ादी के क्या मायने हैं, उस गांव में आज़ादी के क्या मायने हैं. So we need at the PESA level, we get stopped because we don't have funding for failing in the sector. And that's why lack of innovation in the sector. So I'm going to stop with that. Thank you so much, Surbhi. And I think the crux of the matter here is that you need technology, you need resources to work for people and not the other way around. I don't need, I'm a writer, you're a writer, you're a writer, all of us do that. We do not want AI to write our essays. We want some technological solutions that when my child wakes up at night, at midnight, and I have a deadline, I don't have to go and spend 5 hours putting the child back to sleep and missing my deadline. Where is the technological solution to that? There are no solutions because it is not a problem for half the world. And it is only a problem for half the world which is not empowered, for whom there is no fight that is being fought by other people. They are the ones fighting that fight and on an everyday basis. 10वीं पास कर लिया तो 12वीं में जाओगे, 12वीं में फर्स्ट आ गए तो कॉलेज जाओगे. संपत जी, ये वही वाली बात है कि महिलाओं की मतलब उसकी बच्ची की लड़ाई वहीं से शुरू हो जाती है. मेरी बिटिया जब पैदा हुई थी तो वो बहुत रोती थी. आई वेंट टू माई प्रोफेसर एंड सेड माई चाइल्ड इज़ कि मेरी बेटी बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रोने वाली है. तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये लड़की है ना, ये पेट से सीख कर आई है कि अगर ये ज़्यादा लाउड नहीं होगी ना, ज़्यादा शोर नहीं मचाएगी तो इसकी कोई नहीं सुनेगा. तो ये हमने बहुत हंसी मजाक में. आपको ऐसा लगता है कि हमेशा हमें शोर मचाना ही पड़ेगा और हम मचाते ही रहेंगे, तो हम थकेंगे कैसे नहीं? आप थकते कैसे नहीं हैं? ये बताइए. शोर मचाए जा रहे हैं सालों से और मैं सुन रही हूँ, हम सब सुन रहे हैं शोर. देखिए, अभी जो पूजा जी ने बताया कि खबर लहरिया, सबसे बड़ा वो अच्छा पेपर था कि जो गांव की महिलाएं हैं उसे पढ़ लेती थी और बहुत अच्छे से पढ़ती थी और घर घर पेपर जाया करते थे. और मेरे साथ जो आदिवासी महिलाएं थीं, मैं उनको पेपर खरीदती, खबर लहरिया, कि भैया ये तुम्हारी भाषा है, बुंदेलखंडी भाषा है, आप इसे अच्छे से पढ़ो. जैसे अभी लड़की ने बताया, ये भी मेरे बुंदेलखंड की हैं, बरुआ. तो बात एकदम सही है कि आज़ादी किसी को मिलती नहीं है और ये कहते ली जाती, ली भी नहीं जाती, उसको छीनी जाती है. ये भी थोड़ी भूल गई हैं.
ऐसे नहीं आज़ादी मिली, हमारे देश को ऐसे आज़ादी नहीं मिली, कुर्बानी देना पड़ा है। तो हर महिला को कुर्बानी देना पड़ेगा। अबे डॉक्टर साहब मेरे पास बैठे थे और फिर मैंने इन्हें को एक बात बताई थी कि देखिए महिला पुरुष सब एक गाड़ी के पहिया हैं, हम प्रकृति को नहीं बदल सकते। कोई महिला सोचे कि नहीं हम मर्द बन जाएंगे तो मर्द नहीं बन सकती, और कोई मर्द समझे कि हम लेडीज बन जाएं तो नहीं बन सकते। जो प्रकृति ने बनाया है वो अपनी जगह में सब रहेंगे, लेकिन जो ताकत और हिम्मत वो सबकी एक होती है। सोच महिलाओं की कमज़ोर कहाँ से पैदा हो जाती है? जब लड़की पैदा होती है तो उसके माँ बाप सोच को बदल देते हैं। वहीं एक लड़की पैदा हो रही है और पड़ोसी पूछ रहा भैया क्या हुआ, उधर लड़की हुई है ना। तो लड़की के चक्कर में माँ बाप तो दुखी होते पर पड़ोसी भी दुखी हो जाते हैं। एक तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ खड़ी हो जाती है। फिर दूसरा, अगर एक लड़की हुई तो एक माँ कितना बड़ा इंतजार एक लड़के का कर रही है कि नहीं इस बार लड़का हो जाए, और भगवान ने पता नहीं फिर से बिटिया हो गई, तो फिर भी अभी वो लड़के की ख्वाब देख रही है। तो ये किसका दोष है? महिला का। और महिलाएं कहती नहीं नहीं वो तो हमारा पति जबरदस्ती सता रहा है हमें। क्यों सता रहा है? लगाओ 2-3 जूता उसके। अगर वो पति है तो हम पत्नी हैं, हमारे में बड़ी बड़ी मात्रा की वो लगी है। लेकिन जिस दिन वो समझें कि वाकई में हमारी मात्रा बड़ी है, हम घर की लक्ष्मी हैं, हम घर की गृह लक्ष्मी हैं, हम घर की काली दुर्गा हैं, सब कुछ हम ही हैं और हम ही बदल सकते हैं दुनिया को। लेकिन सबसे महिलाओं का जो संगठन, क्या बोलूं मैं तो बहुत पढ़े लिखे लोगों के बीच में बोल रही हूँ, इसको क्या बोलते हैं? महिला संगठन। ये महिला संगठन महिलाओं को नहीं देख सकती। ये बात आप मानना या ना मानना, ये सब आप सब बराबरी के हो, पढ़े लिखे हो, फिर भी कहीं ना कहीं जलन है महिलाओं की कि यार ये तो बड़े अच्छी कपड़ा पहने हैं, ये तो बड़ा अच्छा वेशभूषा पहने हैं, भाई ये तो ज्वेलरी बढ़िया है। तो सबसे जलन महिलाओं की पैदा हो जाती है। महिलाओं को ईर्ष्या द्वेष। पुरुष महिलाओं को देख के खुशी होगा, चाहे जिस नजर से खुशी हो, चाहे वो बहन के रूप से खुशी हो या फिर माँ के रूप से खुशी हो या अपने पड़ोसियों को। हर हमेशा महिला को देख करके पुरुष खुशी होते हैं। भाई देखिए, ये हम जो गलत हमारी जो भावनाएं हैं वो भावना से ही भावना गलत हो जाती है। हम उसको गलत भावनाओं से कभी ना पुरुषों को देखें। मेरा नाम जो चला है केवल महिला पुरुष विरोधी। ये जो लोग नेता लोग हैं कि संपत पाल जो है ये पुरुष विरोधी है। तो मैं एक बार एक विधायक ने कहा, मैं चुनाव लड़ रही थी एमएलए का, तो कह रहे भैया इसको वोट मत देना, ये पुरुष विरोधी है। तो मैंने कहा तू ये बता तेरी माँ किससे तुझको पैदा किया है और मेरी माँ किसको पैदा किया, मेरी माँ भी किससे पैदा की है बताओ। मैंने विधायक को समझाया कि मैं किसी की विरोधी नहीं हूँ, मैं व्यवस्था विरोधी हूँ। तुम्हारे जैसे नालायकों के लिए मैं विरोधी हूँ, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो या फिर कोई नेता हो, चाहे फिर कोई बड़ा गुंडा हो, जो महिलाओं के साथ जास्ती करेगा या गरीबों के साथ या किसी कमज़ोर मर्द के साथ कोई जास्ती करता, वो विरोधी हूँ मैं पुरुष विरोधी नहीं। मेरे पति है, मेरे लड़का है, मेरे बाप है, मेरा बाबा है। मैं बताओ आसमान से थोड़ी कूद के आई हूँ जी। अरे तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए जी। तब फिर उसका मुंह बंद हुआ जी। नहीं वो सगले बस ये रे संपत जी को वोट मत देना, ये संपत जी मर्द विरोधी है। मैंने कहा देखो तो बेवकूफ का। तो देखिए हमको अपनी सोच को ये बदलना है कि हम एक महिला नहीं हैं बल्कि एक इंसान हैं। हम अपने घर के परिवार के लिए हैं, महिला हो या पत्नी हो या औरत हो, कुछ भी हो। हम जो समाज के लिए हैं तो हम एक इंसान है, एक हमारा संगठन है और इसको हमें बदलना ही पड़ेगा। नहीं वही है कि वीर बहादुर खद्दरधारी, देश को लूटो बारी बारी, जिसका नंबर आएगा वो लूटता रहेगा। हम ये चर्चा का विषय बनाए रहेंगे, चर्चा चलती रहेगी। और ये चर्चा आज से नहीं चल रही, सदियों से ये चर्चा चल रही है। बिल्कुल। और इस चर्चा को हमें कैसे मंजिल तक पहुंचाना चाहिए,
कि हर महिला, हर पुरुष सब एकता बना के चलें और समाज के लिए लड़ें, तब हमारा फायदा है। चाहे हमारी लड़की का जो शिक्षा होगी, देखिए अभी एक डॉक्टर को मार डाला गया, एक लड़की है बेचारी कलकत्ता में, आप सुना होगा, कितने रोज के भ्रष्टाचार, और ये नेता ये अपनी रोटी सेंक रहे हैं भैया। सबकी सरकारन में यही होता है, दुनिया खराब है तो सरकार का दोष नहीं है, चूना खराब है तो पान का दोष नहीं। बिल्कुल सही बात है संपत है जी। ना? अभी मैं इस बात पे दोबारा आती हूँ, जी। सरकारों की बात तो मैं अपनी बात कितनी बोलूं कि मैं कितना सबके दिल में भर दूं कि तुम सब एक इंसान बनो, और समाज को अगर बदलना है तो हमें जो झूठ बोले उसको झूठ नहीं बोलने देना, उसकी जबान में लगाम लगाओ, चाहे वो घर का आदमी हो चाहे वो बाहर का आदमी हो, उसकी हाँ में हाँ मत मिलाओ कि नहीं भैया बढ़िया है बढ़िया है। एक जिंदाबाद तो पीछे वाला कहता है जिंदाबाद, एक कहते मुर्दाबाद तो वो पीछे वाला कहते ना जिंदा देखा ना मरा, सब उनके हाँ में हूँ हाँ में हूँ हाँ में हूँ, और वही मीडिया करती है भैया जी। मैं सबको धोऊंगी आज, आप परेशान ना होना, चाहे वो मीडिया हो या फिर वो कोई समाज सेवी हो या कोई, हम कहते झूठ को झूठ कहो कि हाँ झूठ है जी हमको कोई निकाल थोड़ी देगा। जी तुम सुनो या ना सुनो, मैं तो पत्रकारों से बोल देती हूँ भैया हाँ हाँ मैं बोली दे रही हूँ, तुम्हारे दम हो तो निकाल दो, और मेरे में दम है तो मैं बोल दिया, और तुम्हें नेताओं के खिलाफ नहीं निकालना तो अपना चैनल धर लो, इसलिए कि फिर वहाँ विज्ञप्ति नहीं मिलेगी। ठीक है तो यही चीज में ही हमारा देश बर्बाद हो रहा है, हम चर्चा चला रहे हैं। जी। चर्चा देखिए, चर्चा का एक बहुत फायदा ये होता है कि मेरे नहीं देखिए, चर्चा में संपत जी जैसे अगर लोग आ जाएं तो मेरे जैसे लोगों का बड़ा फायदा हो जाता है, because what she said is the grassroots thing, and it is there are certain universal themes that she has touched upon, how women replicate the patriarchal oppressive systems. You know, when they say कि वो ईर्ष्या की और द्वेष की जो बात कर रही हैं कि महिलाओं को नहीं देख सकती हैं, बहुत बड़ा trope है that women are the biggest enemies of women. No, they're not. They're fighting for a very small section of the pie, because it's very limited. 90% has been claimed by men, by patriarchy, and only 10% has been left as largesse for women, and half of the population of the world is actually fighting for barely 10%. Of course there's going to be more jostling because the space has shrunk so much. The other thing is how women just try, when they are in the positions of power, they replicate patriarchy. They begin, अभी संपत जी ने बोला कि भाई महिलाओं की तरह मत सोचो, पुरुषों की तरह मत सोचो, इंसान की तरह सोचो. Women begin to think and act and speak like men when they are in the position of power, because that is what is acknowledged as power. That is what is perceived as power. For example, men and women do not work alike. Women are multitaskers by default and by compulsion. They can't survive without multitasking because they will not be able to accomplish anything either on the professional front or the baggage of the household chores or motherhood or anything other that they cannot wiggle out of. They can't do it. But that multitasking thing, because they cannot specialize. Now, the buzzword like AI is specialization. What do you specialize in? What is your resume headline? Right. Majority of women do not have a straight career path because of mentorship, and that makes it more difficult for them to get hired or to get promotions. Right. So, Surbhi, I want to talk to you about, because retention, you know, and career progression is what? Job retention and career progression, where it becomes not just a wage-like situation, oh, I can sustain myself, but I also have dreams. I want to excel in my career, but my resume does not have the headline of 15 years of super specialized, insert the keyword, the buzzword of the industry at that point in time. How do we tackle this thing? Women, particularly hiring other women, why do they not see it? I'll answer the first one first, like the job retention. So we work at Saji Sapne, we work with young rural women
18 to 23 years old, from Dalit, Bahujan, Adivasi communities, and get them into, currently we get them into STEM and management career pathways. So वो coders बनती हैं, project managers बनती हैं, math teachers बनती हैं. And मतलब पूरा आइडिया साझे का जिस प्रॉब्लम और प्रिंसिपल पे बेस था कि हम ना पिछले 30-40 सालों से गांव की औरत जब सोचते हैं तो सिलाई कढ़ाई बुनाई सोचते हैं. फिर एक मॉडल आया पापड़ पिकल मॉडल कि हम कैसे तैसे वो कुछ फूड प्रोडक्ट बनाएगी, छोटा मार्केट एक्सेस होगा, शी विल बी डूइंग पापड़ पिकल. देन एक कॉल सेंटर मॉडल आया कि इंग्लिश सिखा देंगे फिर वो कॉल सेंटर करेगी. नन ऑफ द प्रोफेशंस आर, आई डोंट हैव एन इशू विद सिलाई कढ़ाई बुनाई एज अ प्रोफेशन. दिक्कत बस ये है कि वो 5 साल तक सिलाई कढ़ाई बुनाई करेगी. There would not be any jump in skills, network, salary, her own personal growth. मतलब यहाँ पे जितने भी लोग हैं, जब आप लोगों ने करियर डिसीजंस लिए हैं, मनी वुड हैव बीन वन फैक्टर, बट देयर वुड हैव बीन मैनी. कि अच्छा मेरा मन है मैं कॉर्पोरेट छोड़ के सोशल सेक्टर आऊँ क्योंकि मुझे XYZ करना है अपने लिए. बी कम्प्लीटली फॉरगेट अबाउट दैट कि वो इंसान एक कॉम्प्लेक्स इंसान है who might want growth for herself. So we got stuck at the livelihood level, and at Saje we wanted to really challenge that. And again, देश इतना बड़ा है और ज़रूरतें इतने सारी हैं, livelihood चाहिए. And by livelihood I mean जैसे तैसे कुछ पैसा आ रहा है. कब आ रहा है, कैसे आ रहा है, उसकी सततता नहीं होगी, बट पैसा आ रहा है ना. तो अगर एक बीड़ी रोलिंग कहीं पे हो रही है और उस औरत की सैलरी 500 रुपये बढ़ गई, we call it a intervention success. बहुत समय से हो रहा है ये, उसकी ज़रूरत भी थी कुछ हद तक, पर हम उससे ऊपर नहीं उठ पा रहे हैं. तो what it means is that I studied at IIT Delhi. So what it means is that an IIT Delhi graduate who went through a proper rigorous training for 4 years, got the exposure all in the world, वो इंसान जब गांव लेवल पे इनोवेशन करते तो वो दे स्टार्ट विद सिलाई कढ़ाई बुनाई. You know, so the best of our minds are thinking the most suboptimal solutions for rural women. तो for us that was the biggest shift कि पहले तो ये नारा ही बदलना है. लाइवलीहुड की बात नहीं कर रहे हैं, ग्रोथ पाथवेज की बात कर रहे हैं. वी आर गोना टॉक अबाउट कि वो लड़की सिर्फ जॉब में घुसेगी नहीं, वो टिकेगी. और वो यू आर नॉट गोना गेट फाइनेंशियल फ्रीडम इफ देर इज नो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. इफ शी डजंट नो इस महीने मेरे पास 1000 रुपये हैं, अगले महीने मेरे पास हैं या नहीं हैं, वो स्टेबिलिटी इज इम्पॉर्टेंट फॉर हर टू एक्चुअली गेट हर इकोनॉमिक फ्रीडम. तो bunch of barriers that come in, and I think this is not women's problem, this is the problem of people in this room, honestly. दिक्कत ये है कि the reason we have been stuck at the सिलाई कढ़ाई बुनाई और बीड़ी रोलिंग और पापड़ पिकल is because हमको भरोसा नहीं है कि वो कुछ और कर सकती है, right? And I was saying this at somewhere else that there's so many edtech solutions that came during COVID. तो इंडिया में इनोवेशन का दिक्कत नहीं है, पैसे का दिक्कत नहीं है, भरोसे का दिक्कत है. when innovators enter in IIT Delhi campus, they start from here. सबसे अच्छा चीज़ क्या दे इन स्टूडेंट्स को? And these are 19-year-olds. I work with 19-year-olds coming from Madhopura, coming from Uttarapatti, coming from Katrasan. वहाँ पे when you enter, you all of a sudden forget what is the best we can give, what is the least bare minimum survival basic that we can give. And it's an insult not just to them but to yourself, that you cannot think more. The creative imagination is so limited. So dikkat, the way we are facing with our girls, one of the most draining part of my job is to explain rural women's potential to powerful men. I cannot emphasize enough how much it is hard for people to imagine. It's exhausting. The process is exhausting. It's exhausting, but it's actually pitiable. मतलब मुझे सच्ची में लगता है कि आप CEO इतनी बड़ी कंपनी के, हाँ आपने दुनिया देखी है. How is it कि आपका दिमाग एक्सपैंड ही नहीं हो पा रहा है टू इमेजिन कि वो लड़की जो पढ़ रही है वो एक्चुअली उसको आता है, आप मौका तो दो. We actually don't even ask companies to say tweak your interview process. The only condition we ask is drop the degree requirement. I mean, there are studies in India which have said that 93% of your engineering graduates are unemployable. So if degree doesn't equal to skills, so lack of degree also won't equal to lack of skills.
वी एक्चुअली से अब से डिग्री का रिक्वायरमेंट हटा दो, डू एवरीथिंग एल्स द सेम. एंट्री पे दिक्कत है. पीपल एक्चुअली डोंट इमेजिन कि गांव की लड़की उनकी कंपनी में काम कर पाएगी. It's easier to imagine the cleaners in a place like this coming from villages. It's hard to imagine people coming from villages running a place like this. तो वो हमारा imagination problem है ना, वो लड़की का problem नहीं है, वो आपका problem है. So that right there at the trust level, innovation ecosystem is broken. Second, अगर उसको workplace में टिकना है, and that's the one that you talk, that we at Sajid don't talk about job, we talk about career. मतलब she needs to stick in the career pathway and she needs to grow. So she can do सिलाई कढ़ाई बुनाई, I don't care, as long as she is growing. तो every company that we talk with, we actually ask, वो सभी जन entry position से शुरू करते हैं, which is okay. I ask कि 2 साल अगर उसने घिसा लिया, what is the next position that is available to her? And you won't believe how many companies actually stumble in answering that. And again, that's not her problem, that's the company culture problem. कि you don't have a growth pathway for your team members. The retention, what helps? I'll talk about the allyship. Managers who have patient capital. Companies who actually have culture of acknowledging that diversity is not just a feel-good thing, it's a business decision. Actually, जब अलग अलग तरीके के लोग साथ में आते हैं ना, दिमाग बदलता है, दिल बदलता है, माहौल बदलता है. So managers or CEOs actually, because it sort of trickles down. CEOs that actually genuinely understand, who are actually keeping up with the cutting edge business research, that diversity is a strong strategic business decision. Inclusion is good for your company. It makes everyone human, as Sampath was saying. So, for us, जहाँ पे लड़कियाँ रुक पा रही हैं, तो we work a lot on the mindset. पहले वो नारा उनके दिमाग में बदलता है ना कि आप सिर्फ आजीविका नहीं कर रहे हो, आप तरक्की के रास्ते पे हो, तो खुद सोचने लग जाती है कि 2 साल बाद कहाँ जाना है मुझे, है ना. Second, working with progressive companies who understand diversity and inclusion are strong strategic choices, who have patience capital. Those are the things that are coming to my mind at the moment. And of course, creating a sort of a, we call it Sapna Dal. Sure. Yeah. So, Taking this further, Subhi just talked about making a case for diversity and inclusion. I was actually doing exactly the same in the security space, strategic affairs, women in the armed forces. Oh, women are not as strong as men, let's not hire them. They cannot be, वो तो ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगी, वो कैसे फौजी बनेंगी, उनको अगर पाकिस्तानी पकड़ के ले गए हॉस्टेज बना लिया तो कितनी बदनामी हो जाएगी, all those sorts of things. So, same problem here at every level, that diversity is not welcomed. It's not our default reaction, is very, very abrasive, very, suspicious of diversity. Oh no, because we are used to this. That's where the role of media and the grassroots media comes into play. And as Khabar Lahariya, do you feel that there are gaps in this campaign, that diversity is not a bad thing, it's a great business decision? So if you hire more women, you're actually expanding the pool, because there are good candidates that you're not even looking at. Women officers, I mean, coming back to the armed forces, 20,000 officers shortage, but you're not even looking at women as officers in combat roles. Basically, you are weakening the army, right? That's just one tiny example. To have that campaign pitched at all levels, what are the stopgap measures that media, grassroots media outlets that yours can play? Yeah, I think diversity is also more complex than we like to say. I think I have like a 2-part response. First is just Khabar Lahariya, I think kind of predates. हम भी सुनने आए हैं पूजा जी आपको बोलिए. Khabar Lahariya, I think, predates diversity and DEI and the whole buzzwords around that. And I'm pretty sure Khabar Lahariya will outlive it as well. It's so interesting. Just yesterday we were in a session and my managing editor Meera, जिनको संपत अच्छे से जानती है, वो कह रही थी कि अब हम अपनी विविधता की कितनी बात करते हैं ना, because जब हम मंचों में जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं और हम बोलते हैं, और हमारे लिए it's been such an organic thing, क्योंकि जब खबर लहरिया की शुरुआत ही हुई तो it was a vivid team of women
who put together that training program कि अब औरतें रिपोर्टर्स बनेंगी, एडिटर्स बनेंगी, जर्नलिस्ट बनेंगी, स्टोरी टेलर्स बनेंगी, तो क्या करना है इसके लिए, क्योंकि हाँ, क्योंकि अपने आप नहीं होगा ये, राइट? तो क्योंकि इसकी नींव ही ना, ओरिजिन्स ही डाइवर्सिटी से आई हैं, विच वर अ बंच ऑफ वुमेन who with privilege, with access to education, all the access things I was talking about, and women from Bundelkhand, you know, with very little access. तो क्योंकि ये नींव में ही है तो ये ऐसे ही ग्रो हुआ है. बट आई थिंक जो अभी हुआ है वो ये माइंडफुल होना इस चीज़ के लिए, और उसको स्ट्रेटिजिकली कैसे देखा जा सकता है, राइट? एंड वही जो कल जो मीरा बात कह रही थी, फिर बाद में हम यही बात कर रहे थे कि वो कितना ज़रूरी है कि हम उसकी बात करें, कि क्योंकि विविधता से जो सुरभि ने कहा है, कंप्लीटली अग्री, ट्रस्ट, एंड शी टच्ड अपॉन इट, बट आई थिंक द क्राइसिस ऑफ इमेजिनेशन रियली, मतलब वो कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं हम उस दुनिया की या उस समाज की जिसके लिए हम सपोजिडली लड़ रहे हैं या काम कर रहे हैं या रोज़ जद्दोजहद में लगे हुए हैं. एंड वाई इज़ दैट? दैट इज़ बिकॉज जो बज़वर्ड्स भी हम बना रहे हैं उनको हम खोल नहीं रहे हैं, बिकॉज डाइवर्सिटी इज़ ऑल्सो वेरी, आई सेड इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, व्हाट आई ऑल्सो मीन इज इट्स ऑल्सो वेरी चैलेंजिंग. तो अभी जब विविधता की बात हो रही है खबर लहरिया में, तो उनकी चुनौतियों की भी हम बात कर रहे हैं जब हम इंटरनली बात करते हैं, राइट? अपने आप मैजिक नहीं होता है, इट्स बिकॉज एक कॉमन गोल के लिए लोग आते हैं. आपने 10% महिलाओं की बात करी, दैट दे काइंड ऑफ ऑल जॉसलिंग फॉर दैट स्पेस. एक्चुअली खबर लहरिया में तो ये सीख मिली है ना कि जब तक वो संगठन नहीं बनेगा, टिल वी डोंट वर्क कलेक्टिवली, तब तक, you know, it doesn't matter how many hashtags of women empowering women you're going to use, because actually this is how that space has space for everyone, you know. It's just that आप उस vision और mission में believe कर सकते हैं क्या, and क्या आप उस पे, you know, कुर्बानी, I really resonate with that word, क्या उसके लिए आप कुर्बानी देना चाहेंगे, you know, because I think that's the only way that it will happen. And since you talked about media narrative, I think वही going back to जो मीरा कल कह रही थी, I think हम यही बात कर रहे थे कि बहुत ज़रूरी है कि हम जाके बोले मंचों में कि ये विविधता खबर लहरिया में है, शुरू से है, हम इसको, हमारे लिए डिफ़ॉल्ट है, बट इट्स वेरी पावरफुल टू टॉक अबाउट इट, कि व्हाट डज़ इट मीन जब मीरा और मैं और मेरी सहकर्मियाँ साथ में मिलकर किसी चीज़ की बात करते हैं. इनोवेशन तब आता है, एक्चुअली वहाँ से स्पेस खुलता है. अगर हम अपने ट्रेनिंग की बात करें, चंबल एकेडमी जो हमने खोला, आई रियली फील कि वो इनोवेशन इसलिए ही आ पाया क्योंकि ये महिला, वरना कितने एडटेक स्पेसेस हैं, कितने लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारी अपस्किलिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग हो रही है. बट यू नो व्हाई इज़ इट दैट ये यूनिक, व्हाई इज़ इट दैट ये यूनिक है, यू नो, क्योंकि वो ग्रास रूट से आ रहा है, क्योंकि उसमें वो विविध टीम लगी हुई है, क्योंकि उसमें बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि अगर हम एक डिजिटल सिक्योरिटी टूल किट बना रहे हैं, जो हमने बनाया, तो वो क्या है, व्हाट इज़ इट एग्जैक्टली, जहाँ पर एक्सेस नहीं है फ़ोन का महिलाओं के पास या यंग गर्ल्स के पास, या वो बेनिफिशरीज़ की तरह देखी जा रही हैं, एक्सेस उस वे में है, देन व्हाट डज़ इट मीन कि अपने आप को डिजिटली सिक्योर करना. मैंने पहले कहा कि अब सब डिजिटली एक्सेस हो रहे हैं, सिटीजन्स हो रहे हैं, बट यू नो टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट मीन्स, इवन टू नेविगेट दैट पाथ, वो कौन सोच रहा है, राइट? Giving off laptops is one thing. So, I think that's what, I think the innovation and the imagination all comes from actually true diversity. True diversity, you have to live diversity and not just mouth it. You feel it, and that's when you start living it. Otherwise, it does not happen. संपत जी, ये विविधता की जो बात हो रही है यहाँ पे, कि हर प्रकार के लोग हैं, हर प्रकार की महिलाओं के साथ आप काम करते आए हैं, और ऐसा नहीं है कि किसी महिलाओं का एक जो ग्रुप है उसकी समस्याएं महिलाओं के दूसरे ग्रुप जैसी ही हैं. जितनी महिलाएं उसकी उतनी समस्याएं हैं, ठीक है? तो जब हम एक बात करते हैं कि सोशल जस्टिस वाला, क्योंकि सामाजिक न्याय का आपका जहाँ पे आपका वर्चस्व है वो सामाजिक न्याय की बात है यहाँ पे, तो जब इतनी सारी समस्याएं हैं, उसकी फिर एक ये भी हो जाती है कि ये नंबर 1 समस्या है, ये नंबर 2 समस्या है, ये नंबर 3 है, जो 15-20 नंबर पे जो आ रही हैं वो तो बेचारी रह गई. उसमें आप कैसे प्रायोरिटाइज करते हो कि मैं इस चीज़ को मैं नंबर 1 बनाऊंगी, क्योंकि ये करना भी बहुत एक समझदारी का काम है. देखिए, जहाँ आप ये बात कर रही हैं कि उनको जैसे हर प्रकार की महिलाएं हैं, गांव में महिलाएं हैं, संपत पाल दिल्ली आ गई है, हर महिला दिल्ली नहीं आ सकती जो गांव की होती हैं,
वो बेचारी खेत खलिहान का काम करती हैं, अपने बच्चे भी पालती हैं, गरीबी से भी जूझ रही हैं, फिर भी वो महिला स्ट्रांग होती हैं, अपने हक के लिए वो लड़ जाती हैं। मैं सबसे डरपोक महिलाएं शहर की मानती हूँ, उनको बहुत खतरा है। देखिए मेरी जबान जो है अलग है, भला आपसे बहुत अलग है, मैं चर्चा नहीं कर रही, मैं इसका पूरा सारा अंश निकाल रही हूँ। अच्छी अच्छी पढ़ी लिखी महिला और आज यहाँ रोज़ घटनाएं सुनने को मिलती हैं, तो जब आपके साथ ऐसा होता है तो हम तो बहुत कमज़ोर हैं भाई, हम तो गांव में रहते हैं। पर गुलाबी गैंग का डंडा क्यों बनाया गया? इसीलिए बनाया गया। मैंने डंडा क्यों उठाऊं महिलाएं के लिए? हमको कहते हैं ये नक्सली हैं, बहुत है, हमने उसका भी पंगा बहुत लिया। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश में मायावती की सरकार थी और गरीब महिलाओं के लिए एक तरह से मैं पहले छुआछूत को मिटाया है कि ये छुआछूत है क्या। मैं अपने अनुभव से सोचा करती थी, मैं अपनी ही बात रख रही हूँ, फिर मैं उसको धीरे धीरे कि ये ऐसे नहीं हो पाएगा, ये महिलाओं को पहले संगठन तैयार करना पड़ेगा। जब हम 10 महिलाएं मिलकर लड़ेंगी तो एक 10 आदमी हमारी बात को सुनेगा, अकेले आवाज़ नहीं उठाई जा सकती। तब मैं धीरे धीरे ये संगठन तैयार किया, गांव की महिलाओं को मीटिंग में बुलाती थी, धीरे धीरे उनको गाना गीत सुना सुना के उनको अपने पक्ष में लाई और फिर अपने पक्ष में ले करके उन्हें मैं स्वावलंबी बनाने का काम किया कि इनको कैसे हम बना सकते हैं। भाई इनका अगर इनके पति से हम लड़वा भी दें और ये बेचारी कुछ इनके हाथ में रोजगार नहीं मिलेगा तो कल के दिन ये लाठी भी खाएंगी और इनको कुछ मिलेगा भी नहीं। तो पहले तो हम वही शुरुआत की कि हर महिला को हमने एक संगठन में ऐसा प्रशिक्षण देते थे कि मारने पीटने की बात नहीं करते थे, केवल लड़का लड़की के भेदभाव में कि भाई लड़का हो या लड़की हो वो सब एक ही चीज़ है, ये लड़का के चक्कर में मत पड़ा करो। दूसरी बात उनको क्या स्वावलंबी बनाया कि तुम गांव में हम एक 20-20 रुपए का खाता खुलवाया, वो सरकार वाला नहीं, सरकार तो कुछ कर ही नहीं पाई। जो SSY को वो जो NGO से पैसे जमे कराए जाते थे उससे कुछ हुआ ही नहीं, सब महिलाओं को बंदर बांट हुआ। लेकिन मैं ऐसी एक अपनी कमेटी को तैयार किया कि हर महिला पहले तुम 20-20 रुपए आप बैंक में पैसा जमा करो, लेकिन बैंक वो है तुम्हारी बैंक होनी चाहिए, वो बैंक में नहीं, आप अपनी खुद की बैंक बनाओ। तो हमने एक बक्सा, देखो एक उदाहरण मैं दे रही हूँ, कभी आना तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो मैंने बक्सा खरीदती थी, 15 महिलाओं का समूह बनाती थी, वो उन्हीं का पैसा उन्हीं के बक्से में डलवाती थी। ताला चाबी 5 महिलाओं का एक कमेटी बना के कि तुम्हारी जिम्मेदारी है और इसका मैनेजमेंट मैं करूँगी और तुम इतना काम करती रहो। फिर धीरे धीरे उनको इतना लालच आया कि 100-100 रुपये जमा करने लगी। तो मैं 36 गांव में समूह बनाया और 36 गांव में जब हमारे 15-20 लाख का ये हमारा बजट हुआ तो उन्हीं महिलाओं को मैंने खेत गहन रखवाया। हमारे यहाँ बलकत को खेत रखते हैं, तो वही महिलाएं 15 महिलाएं का जो ग्रुप है 1 बीघे खेते में लाखों की सब्जी उगाती थी और खुद बेचने जाती। में ये शर्म वरम नहीं है, अपना खुद काम करो, ये अपना बिजनेस है, रोजगार है, ये सब अपनी मेहनत मजदूरी है। कुछ महिलाएं कहा हमें लोग हंसेंगे, तो मैंने कहा चारा जब घास छीलने जाती हो दूसरे की मजदूरी करें तो उसमें नहीं लोग हंसते, ये उनकी झिझक हमें छुटाना पड़ा। कुछ गांव की महिलाएं अगर फिर मैं उनके स्कूल खोली महिलाओं के कि तुम किसी मास्टर से नहीं पढ़ना, अपने बच्चों से पढ़ो। तुम्हारे बच्चा 1-2 में पढ़ते हैं और किताब लेके तुम घंटा खान उनसे सीखो। और जब छोटा से बच्चा पढ़ जाता है तो तुम तो 40-40 साल की महिला पढ़ नहीं सकती हो। मैंने कई स्कूल खोला महिलाओं के और 30,000 महिलाओं को हमने साक्षर बना दिया। ये गुलाबी गैंग और 30,000 महिलाएं कौन थी? आदिवासी, जो कभी शिक्षा का नाम नहीं जानती थी। तो इस तरह हम उनको धीरे धीरे, अब वो कुछ लोग हमारी नकल शुरू किया तो ग्रीन गैंग बना, फिर नीला गैंग बना, फिर आर्मी गैंग बना, लेकिन गुलाबी गैंग का पंगा कोई नहीं लिया। और धीरे धीरे करके जब मेरा संगठन मजबूत हुआ, पैसे से मजबूत हुई, तो उन्हीं के आदमी उनकी इज्जत करना सीख गए। अरे जबरदस्ती दीदी के साथ चलो, दीदी के साथ बनो, और उनको इतनी शिक्षा सिखाए कि अपने पति को जो आप ना कहना तो कुछ सभ्यता से बात नहीं। गांव की महिला
हमारा बुंदेलखंड की भाषा आप जानती हो, हैं? अगर महिला को सहा जाए अपने आदमी से, कहे तय वहाँ जाना है, चुप बैठ। मैंने कहा ये मत कहना, ये अच्छी सभ्यता उनको सिखाओ और तुम भी सीखो, तुम्हारा बच्चा भी सीखेगा। तो इस तरह की मैंने उनको शिक्षा दी और आज धीरे धीरे लड़कियां भी पढ़ने लगी, महिलाएं जागरूक। आज मेरी संस्था में 11 लाख औरत है और मैं सरकार से कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं, 1 रुपए नहीं। जब कुछ नेता लोग हमारे पीछे पड़े कि तो हमको ये करेंगे वो कर्म करना, पैसे के पीछे मैं नहीं घूमूंगी, पैसा मेरे पीछे घूमेगा। और मैं इतना अच्छा काम किया, इतना अच्छा काम किया कि मुझे एक दरोगा की मैंने धुनाई कर दी। भाई साथ साथ ये भी करना होता है, जब उनको समूह बनाएंगे, उनके साथ अत्याचार होगा तो वो लड़ाई कौन लड़ेगा, हम ही तो लड़ेंगे, हैं? एक आदमी को 11 दिन पकड़ के एक दरोगा ने बंद किया और मैं वहां पहुंची। मैंने कहा तुम ये बताओ कौन सी किताब में लिखा है कि एक मुलजिम को तो 11 दिन पकड़ के बंद कर रखा है। तो अब पुलिस की भाषा ही होती है ऐसे, अरे तू जा अपना काम कर, तेरी जैसे 50 तो मेरे तो कई हजार औरतें हैं। मैं 300 महिलाएं ले आई, 300 कुत्ते भी ले आई और उन कुत्तों को पुलिस का दर्जा दे दिया कि ये थानाध्यक्ष फलाने, थानाध्यक्ष ढकाने, जितने थाना थे जिले के सबको पद दिया। और दरोगा हमसे खिसिया गया। हाँ, वो आया तो गाली वाली बकने लगा कुछ महिलाओं को, तो मैंने एक डंडा लिए थी तो एक डंडा ऐसे मारा और सारी महिलाएं उसको पटक पटक के मारा और हम इतना फोर्स आ गया कि हे भगवान, लेकिन हम नहीं डरे। एक दरोगा जी कहा तुमको गोली से मार दें, बना दो जलियांवाला बाग। हम तो यही चाहते हैं कि कम से कम अब दूसरी आज़ादी तैयार हो जाए, हैं? तो मैंने तो किसी की हिम्मत नहीं पड़ी। सुनो, तो महिलाओं से कोई हिम्मत नहीं बनाता, तो अपनी हिम्मत को पहले अपनी व्यवस्था मजबूत करना चाहिए। ये नहीं कि हमारे 2 रुपया नहीं है और हम पति से झगड़ा मचाना शुरू कर दें। तो देखिए, पहले हमें स्वावलंबी बनना पड़ेगा भाई साहब, चाहे हम सरकार से लड़ें, चाहे जिससे पहले हमें खुद का मजबूत होना पड़ेगा। ठीक है, तो हमारा गैंग जो आज चल रहा है ना, हमारा अब गुलाबी गैंग के नाम से मैं रजिस्ट्रेशन भी करवा ली हूँ कि गुलाबी सेवा संस्था। आप बताओ, गैंग के नाम से रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा था हैं? और मैं यहाँ दिल्ली आई थी तो मोतीलाल बोरा जी कह रहे थे ये गैंग हटा दो। मैंने तब मैं नहीं जानती थी मोतीलाल बोरा हैं कौन पहले, ये बहुत दिन की पुरानी बात है। अरे मैं कहा बाबा चुप बैठ, जब तो ये गैंग का पता ही नहीं है, ये गैंग है क्या? कहा नहीं नहीं, ये तो बदमाशों का होता। मैं कहा तो रेलवे का हटा दो ना और पीडब्ल्यू का गैंग हटा दो भाई, वहाँ तो गैंगमैन होते हैं। तो देखिए, अपनी बात करने में कभी किसी को डरना नहीं चाहिए। तो गहलोत जी कहें कि संपत जी इनको जानती हो? मैंने किसको? कहा इनको, ये गवर्नर रहे। मैं कहा ये भगवान रहे, अब कहे बैठी। ये जनता से ही नेता बनते हैं। हमारी वोट की कीमत कितनी बड़ी होती है, ये नेताओं को कितना तनख्वाह मिलता है, एक एक बार चुनाव जीत गए। और हम जिंदगी वोट देते देते, हमारी असली लड़ाई कि हमारा वोटर पेंशन तुम दो, ये भी लड़ाई हमें लड़नी चाहिए जनता को। और लोग कहते भैया सरकार के खिलाफ मत बोलना। अरे सरकार हमारी है, हम उनसे नहीं बोले, किससे बोलेंगे बताओ, हैं? तो सरकार बनाते हैं हम, सरकार गिराते हैं हम। और इसीलिए आदमी मात खा रहा है, बस वही चर्चा चर्चा चर्चा। संपत जी, चर्चा का तो समय ही खत्म हो गया यहाँ पे अब। Absolutely, absolutely. Sorry? The questions, yes. If we have some time for the questions, and there are 2 questions. Yeah. Absolutely not. And संपत जी, आप ऐसी जगह पर काम करते हैं ना, आपके जो जहाँ पे मतलब ये अंग्रेजी में कहते हैं दिस इज़ एक्चुअली द ग्रेवयार्ड ऑफ ऑल आइडियलिज्म। वो मतलब जो हमारा जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, वो वहाँ पे जाके दफन हो जाता है। एक्चुअली थिंग्स वर्क द वे संपत जी सेइंग, इट हर्ट्स मी टू से दिस, बट काम ऐसे ही निकलवाना पड़ता है बहुत जगहों पे। राइट। Okay, so the question here is to Surbhi. There is a question. How are you able to change the mindset of rural women from shifting Silai Kadhai Bunai jobs to coding, growth career path, as they prefer short-term solution, want to earn fast?
कि लड़कियों के साथ इतनी दिक्कत नहीं आई है. आर स्टूडेंट्स आर सपने वालीज, वी कॉल देम सपने वालीज. उनकी द एज ग्रुप इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट है, 18 to 23 years old, क्योंकि उनकी नीड आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम अदर एज ग्रुप्स. तो उनकी जो ज़रूरत होती है सबसे पहले होती है कि घर से दूर जाना है क्योंकि शादी की उम्र है. एंड a lot of young women are not desiring to get married. तो the moment that need is served कि मुझे घर से दूर जाने को मिलेगा, that's a one win. Second, they do want to earn, they just don't know how. तो for us, our program is a year long program. तो जैसे वो नेगोशिएशन चिप उनके हाथ में आता है कि 1 साल के बाद मेरे लिए रास्ते खुलेंगे, 4 साल इज टू लॉन्ग फॉर देम. तो कन्विंसिंग पेरेंट्स की 4 साल का कॉलेज करना है, दैट बिकम्स जस्ट अ मैरिज सर्टिफिकेट की पढ़ाई कॉलेज इसलिए करना है क्योंकि लड़का सरकारी नौकरी वाला मिलेगा. तो द सेकेंड थिंग दैट वर्क्स इन आवर फेवर इज कि नेगोशिएशन चिप विद द फैमिली इज प्रीटी सॉलिड कि 1 साल का कोर्स है एंड होपफुली द pathways will open for me. Then comes the curriculum, the way we teach. I think pedagogy बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे उसका, तो बहुत सारी चीज़ें उसमें, तो अब मैं क्या बताऊँ, but we actually go on activity based learning, but also bringing the peer learning out. कि वो ग्रुप की actually the way we talk about ये agency equal to power of learning plus power of earning plus power of collective. तो ये जो कलेक्टिव का बिट है ना, ये बहुत इंटीग्रल है उनकी एजेंसी बिल्डिंग के लिए, क्योंकि वो जब साथ की लड़की को आगे बढ़ता देखती है ना, अचानक से वो विजुअल बहुत क्लियर हो जाता है कि यार उसने किया तो मैं भी कर सकती हूँ. आई मीन दैट्स हाउ अ लॉट ऑफ पीपल, आई मीन दैट्स हाउ ह्यूमंस एक्चुअली फंक्शन, कि अच्छा वो कर रही है तो द विजुअल इज वेरी क्लियर फॉर मी, आई कैन डू इट टू. तो अपार्ट फ्रॉम द पेडागॉजी विच आई कैन नॉट गो इनटू राइट नाउ, वी work a lot on this, or trying to work a lot on the collective bit of it. कि वो 2 लड़कियाँ एक जॉब, एक जैसे अभी एक्चुअली 2 यहाँ पे हैं एंड दे आर रनिंग देयर ओन टेक स्टार्टअप. तो उनका पहली बार उनका वो आई कार्ड बना है, तो सुबह मुझे फोटो आई, तो इट सेड मीनू यादव उद्यमी टेक, लाइक देयर कंपनी इज रिटन. अभी ये फोटो जाएगा अलुमनाई ग्रुप में, ऑल ऑफ सडन वहाँ आग दौड़ेगी, मेरे को भी मेरी कंपनी चाहिए, है ना. वो कब बनेगी वो नहीं पता है, बट आग दौड़ जाएगी, राइट. So those are some quick answers. The struggle for us has been changing the mindsets of the companies, honestly. It's not the girls. उनको एक जगह लेके आओ जहाँ और इतनी भूखी है ना सीखने के लिए, because the level is very low in what we are providing them. So the moment there is learning that comes in, they actually are very hungry. तो लड़कियों के साथ इतनी दिक्कत नहीं आती, सपने वालियों के साथ इतनी दिक्कत नहीं आती in changing mindset. Peer group helps, pedagogy helps. Changing the mindset on the other side, on the employment side, that's an uphill task right now. Right. There's another question here, and I believe there's only 90 seconds left for the session to wind up. I'll take it to you, Pooja. How does one resolve the challenge of significant representation of women not leading to empowerment of and support to women that is intersectional? Again, women not really breaking barriers for other women. I'm not sure I got the question. It's how does one resolve the challenge? You know, where there is significant representation of women, there are a lot of women, but they are not empowering other women. Kicking the ladder down, basically. Okay, you mean again that the buzzword of passing the mic, and how can that be real? I think it kind of connects with what we have been, maybe Nishkarsh of everything, which is to visualize it. I mean, when Surbhi was talking about it, I can really thinking of also a lot of the women we work with, and also as part of, you know, the alumni at the academy. It's very true. We've always used to hear this कि मुझे इसके जैसा बनना है, उनके जैसा बनना है. And again ये खबर लहरिया की learning है, क्योंकि जब आप मीरा को देखते हो, गीता को देखते हो, नाजनी को देखते हो फील्ड में, सिंगल women from Muslim communities, आदिवासी women जो जाके पावरफुल लोगों से सवाल पूछ रही हैं, फॉलो अप कर रही हैं, वो you know कुछ भी कर लो आप, जितनी भी बातें कर लो, nothing will shift that. So I think that the quick answer is just that since it's a crisis of imagination, let's visualize it, like let's verbalize it, and which is why इस तरह की चर्चाएं और ज़रूरी उस वे में है कि हम visualize कर सकें
कि ये काम जो है वो एक्चुअली में दिखता कैसे है जब हम विविधता की बात कर रहे हैं, या जब हम कह रहे हैं कि हम सुनने आए हैं, बोलना कम चाहते हैं. व्हाट डज दैट मीन? दिस इज हाउ यू काइंड ऑफ, आई गेस, लीड. Absolutely. Thank you so much. बहुत 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 शुक्रिया मेरे ये पैनल का. This has been one of the most fascinating panels that I've been a part of. Absolutely. I mean, I was expecting nothing less. Yeah, I think it was an amazing session. I think challenging our imagination of women for women. And I think it also addressed the true issues of women. I think the techno-capitalism, women AI, yeah, it does make us think, hey, didn't we have women in the planning as well? And I think this is exactly what we wanted at the Charcha, and we're glad we did that. And so I'm going to request you all to give another round of applause for this amazing panel. And absolutely a fantastic way to end the day one sessions that has happened here. May I request Nishta to just hand over the scarves to the amazing panelists, please. And as we are ending, all of you just go back, and the QR code at the end of behind your agenda sheet is the scan it, and it is for the feedback. Please do that. And at 6:30 p.m. there is a concert by Malini Avasthi, and 7:30 onwards is networking dinner. So enjoy the rest of the evening, continuing your charcha with like-minded folks. See you all tomorrow, and let's continue discussing. Just behave like the